عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مائی سیلف توفیق شیخ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ چلیے بچوں، آج ہم شروع کرتے ہیں 7ویں جماعت کا جنرل سائنس کا 5واں سبق، جس کا نام ہے غذائی اشیاء کی حفاظت۔ اس کا تیسرا پارٹ۔ بچوں، ہم نے دوسرے پارٹ میں غذا کا ذخیرہ اور اس کا تحفظ کے بارے میں معلومات حاصل کیے تھے۔ چلیے آج آگے بڑھتے ہیں، غذا کی حفاظت کے مختلف طریقوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں بچوں۔ یہ ابھی کتاب میں بہت خوبصورت ڈائیگرام دیا گیا ہے بچوں، غذا کی حفاظت کے طریقے۔ چلیے اوپر سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ دیکھتے ہیں ہم، سرد کرنا۔ کم درجہ حرارت پر غذائی اشیاء میں حیاتی اور کیمیائی تعاملات کی رفتار سست ہو جاتی ہے، اس لیے غذائی اشیاء کافی مدت تک محفوظ رہ سکتی ہیں۔ اس کے لیے گھر میں ریفریجریٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھے ہی ہوں گے، آپ کے گھر میں ریفریجریٹر ہوگا ہی، ٹھیک ہے، جس میں غذا سرد ہو کر محفوظ رہتی ہے۔ سمجھ میں آیا یہ پہلا طریقہ کیوں ہوتا ہے ایسا سرد کرنا؟ کم درجہ حرارت پر غذائی اشیاء میں حیاتی اور کیمیائی تعاملات کی رفتار سست ہو جاتی ہے، اس لیے غذائی اشیاء کا کافی مدت تک محفوظ رہ سکتی ہیں غذائی اشیاء۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ پہلا طریقہ سمجھ میں آیا۔ چلیے اگلے طریقے کی طرف جاتے ہیں، گیس کا استعمال۔ گیس کا طریقہ، بچوں آپ نے چپس وغیرہ دیکھے ہی ہوں گے، چپس کے پیکٹ۔ چپس اور دوسری غذائی اشیاء ہوا بند پیکٹ میں بند کرتے وقت نائٹروجن کا استعمال کر کے اس میں موجود کیڑوں اور پھپھوند کی نشو نما روکی جا سکتی ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے بچوں۔ چپس کے پیکٹ وغیرہ دیکھے ہوں گے آپ نے، چپس اور دوسری غذائی اشیاء ہوا بند پیکٹ میں بند کرتے وقت، پیک کرتے وقت نائٹروجن کا استعمال کر کے اس میں موجود کیڑوں اور پھپھوند کی نشو نما روکی جا سکتی ہے بچوں۔ یہ ہے حفاظت کا اگلا طریقہ۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، دھواں دینا۔ اس میں دھواں دے کر غذا کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس میں ایلومینیم فاسفیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دھواں دینا یہ غذا کی حفاظت کا اور ایک طریقہ ہے بچوں۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں دھواں دے کر غذا کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے کس کا استعمال ہوتا ہے؟ اس میں ایلومینیم فاسفیٹ کا استعمال ہوتا ہے بچوں۔ آیا سمجھ میں؟ چلیے ابھی اور دوسرا اگلا طریقہ دیکھتے ہیں، حشرات کش دواؤں کا استعمال۔ بچوں تھیلے میں اناج بھرنے کے بعد اس میں میلاتھیون کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ جب تھیلے میں اناج بھرتے ہیں بچوں، تو تھیلے میں اناج بھرنے کے بعد اس پر میلاتھیون کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے اگلا طریقہ غذا کی حفاظت کا، ٹھیک ہے۔ اب اگلا طریقہ دیکھتے ہیں،
शुआई पाशी। क्या? शुआई पाशी। इस अमल में ग़िज़ाई अशिया पर बर्क पारों का छिड़काव करते हैं, मसलन ज़्यादा तवानाई वाले इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटर के ज़रिए तैयार करदा एक्स शुआएं, जिसे आप एक्स रेस कहते हैं बच्चों, और तापकार हमजा से खारिज होने वाले ग्यामा शुआएं के ज़रिए खूर्दबीनी जानदारों, फफूंद और कीड़ों को ख़त्म किया जाता है। ठीक है बच्चों, और एक बार सुनिए, ये शुआई आबपाशी ये तरीका क्या है कि इस अमल में ग़िज़ाई अशिया पर बर्की पारों, कौन कौन से हैं बर्की पारों? बर्की पारे कौन कौन से हैं? तो उन बर्की पारों का छिड़काव करते हैं, मतलब ज़्यादा तवानाई वाले इलेक्ट्रॉन और एक्सीलेटर के ज़रिए तैयार करदा एक्स शुआएं और तापकार हमजा से खारिज होने वाले ग्यामा शुआएं के ज़रिए खूर्दबीनी जानदार, फफूंद और कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। अब इसी तरह फलों की फसलों के तैयार होने की मुद्दत बढ़ने से इनका नुकसान कम हो जाता है। इसी तरह अखवा निकलने का अमल सुस्त हो जाने से आलू, प्याज वगैरह ग़िज़ाई अशिया ज़्यादा मुद्दत तक अच्छी हालत में रहती है। ये तरीका समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलिए अभी अगले तरीके की तरफ जाते हैं। चलिए, अगला तरीका है पॉस्चुराना। इसे अंग्रेज़ी में पॉस्चराइजेशन कहते हैं बच्चों, आप सुने भी होंगे। इस अमल में दूध या इसी तरह की अशिया मखसूस दर्ज हरारत तक, मसलन दूध को 80 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट गर्म किया जाता है और बाद में फ़ौरन इसे ठंडा करते हैं। इससे दूध में मौजूद खूर्दबीनी जानदार ख़त्म होकर दूध ज़्यादा अरसे तक अच्छी हालत में रहता है। इसे कहते हैं बच्चों पॉस्चराइजेशन। दूध का पॉस्चराइजेशन कैसे होता है? और एक बार सुनिए, दूध को 80 डिग्री सेल्सियस तक 15 मिनट गर्म किया जाता है और बाद में फ़ौरन इसे ठंडा करते हैं। इससे दूध में मौजूद खूर्दबीनी जानदार ख़त्म हो जाते हैं और दूध ज़्यादा अरसे तक अच्छी हालत में रहता है बच्चों। इसे कहते हैं पॉस्चराइजेशन, पॉस्चराना। ठीक है, चलिए और अगला तरीका देखेंगे, कीमियाई तहफ़्फ़ुज़ी। अब ग़िज़ा की हिफाजत के अगले तरीके देखेंगे। अगला तरीका है तहफ़्फ़ुज़ी अशिया का इस्तेमाल। अब तहफ़्फ़ुज़ी अशिया की मुख्तलिफ़ किस्में हैं बच्चों। पहली है कुदरती तहफ़्फ़ुज़ी अशिया। देखिए उसके बारे में। कुदरत में दस्तयाब तहफ़्फ़ुज़ी अशिया में नमक, शक्कर, तेल इस्तेमाल करके अचार, जेली, मुरब्बे, पेड़ा वगैरह तैयार करते हैं। ठीक है, क्या कुदरती तहफ़्फ़ुज़ी अशिया का इस्तेमाल कर हम कौन सी चीज़ें तैयार करते हैं? कुदरत में दस्तयाब तहफ़्फ़ुज़ी अशिया में नमक, शक्कर, तेल इस्तेमाल कर अचार, जेली, मुरब्बे वगैरह
तैयार करते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे कीमियाई तहफ़्फ़ुज़ी अशिया। इसमें ख़ास तौर पर एसिटिक एसिड, सिरका, आप सुने होंगे सिरका, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोनेट, नेज, कुछ नाइट्रेट और नाइट्राइट नमक का इस्तेमाल करके सॉस, जेली पकाने के लिए तैयार तरकारियाँ और ग़िज़ा वगैरह के पैकेट तैयार करके इन्हें काफ़ी दिनों तक महफूज रखा जाता है। यानी दो किस्म की तहफ़्फ़ुज़ी अशिया हैं बच्चों, कुदरती तहफ़्फ़ुज़ी अशिया और कीमियाई तहफ़्फ़ुज़ी अशिया। आया समझे बच्चों? तो ये अभी हमने जो पढ़े हैं ये हमने देखा है ग़िज़ा की हिफाजत के मुख्तलिफ़ तरीके कौन कौन से हैं। सर्द करना, धुआं देना, इशरात, कुछ दवाओं का इस्तेमाल करना, शुआ पाशी, पॉस्चराइजेशन, पॉस्चर करना जिसे कहते हैं, पॉस्चर आना जिसे कहते हैं, और तहफ़्फ़ुज़ी अशिया का इस्तेमाल, कुदरती तहफ़्फ़ुज़ी अशिया, कीमियाई तहफ़्फ़ुज़ी अशिया और फिर गैस का इस्तेमाल। ये तमाम ग़िज़ा की हिफाजत के मुख्तलिफ़ तरीके हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको मालूम है ऊंचे दर्जे हरारत का इस्तेमाल करके ग़िज़ाई अशिया में खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा रोक कर ग़िज़ा की खुसूसियत बरकरार रखने का तरीका माहिर हयातियात लुई पास्चर ने दरियाफ़्त किया है बच्चों कि ऊंचे दर्जा हरारत का इस्तेमाल करके ग़िज़ाई अशिया में जो मौजूद खुर्दबीनी जानदार होते हैं उनकी नशोनुमा रोक कर ग़िज़ा की खुसूसियत बरकरार रखी जा सकती है। और ये तरीका किसने दरियाफ़्त किया? माहिर हयातियात लुई पास्चर ने दरियाफ़्त किया। ये याद रखिए बच्चों। चलिए अभी और एक जनरल नॉलेज लेते हैं। क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र के लासल गांव में प्याज और आलू नई मुंबई में मसालों पर शुआ पाशी करने वाले आलात का मरकज़ कायम किया गया है। आया बच्चों समझ में? ग़िज़ा की हिफाजत के मुख्तलिफ़ तरीके और कुछ मालूमात हमने हासिल की है बच्चों। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर इस सबक का ये तीसरा पार्ट हम ख़त्म करते हैं जिसमें हमने ग़िज़ा की हिफाजत के तरीके के मुतालिक मालूमात हासिल की है बच्चों। वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए बच्चों, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए बच्चों और पढ़ाई में दिल लगाए रखिए। अपना ख्याल रखिए बच्चों। अल्लाह हाफिज़।